Students, now we will start with the next point, that is temperature regulation. First we will read the point. The earth receives energy from the sun. Okay, this we are very much well known about this, that the earth receives energy from the sun in the form of heat and light. This energy is reflected by the earth in the form of heat. ये जो light energy, heat energy, light energy which is received by the earth from the sun, it gets reflected from the earth. जो earth का surface होता है वो उसको reflect करता है, वो पूरी की पूरी energy absorb नहीं करता, it gets reflected by the surface of the earth in the form of heat. Okay, the constituents of air surrounding the earth, जो एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है? नाउ वी हैव लर्न ऑलरेडी दैट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, then water vapor, carbon dioxide, then some inert gases, all these are the constituents of air. Okay, ये जो constituents होते हैं which are surrounding the earth, such as यहाँ पर एग्जांपल दिए water vapor and carbon dioxide. ये जो दो constituent है water vapor and carbon dioxide, ये क्या करते हैं? They absorb a part of this heat and give it to the other constituents of air. ये दोनों क्या करते हैं? वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे एब्सॉर्ब द पार्ट ऑफ द हीट, नॉट टोटल हीट बट पार्ट ऑफ द हीट. ओके, उसका कुछ हिस्सा दे एब्सॉर्ब इट एंड गिव इट टू द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर. कौन से अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स? लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. बिकॉज व्हाट इज द रीजन? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन दे डू नॉट एब्सॉर्ब द हीट. उनकी कैपेसिटी नहीं होती है हीट एब्सॉर्ब करने की, लेकिन उनको कौन हीट ट्रांसफर करता है? वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, उसकी वजह से क्या होता है? As a result, the Earth's surface remains warm and thereby becomes suitable for the living code on the Earth. उसकी वजह से क्या होता है कि Earth का जो एटमॉस्फेयर है, it becomes suitable for the living things. Okay, living things को रहने के लिए लायक होता है और they can remain safely on the Earth. If there were no air on the Earth, the average temperature of the Earth's surface would have been very low. अगर ये Earth का टेम्परेचर, अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर, नहीं तो वी कैन से द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, अगर ये इतना नॉर्मल नहीं होता जो आज है, तो उसका एवरेज टेम्परेचर इतना नीचे होता कि यहाँ पर लिविंग थिंग्स को रहना बहुत मुश्किल हो जाता. ओके, बहुत मुश्किल, यानी इट वाज नॉट पॉसिबल देन टू बी रिमेन अलाइव on the earth. Okay, here two questions are given. Use your brain power. What would happen if all the air surrounding us is removed? अगर सारी हवा निकाल दी अपने आजू बाजू की, around the earth, atmosphere में जितनी हवा है वो सारी निकाल दी, क्या होगा? The living things will not be able to survive. Okay, second question is there, will sound be heard in space? अगर हवा नहीं होती तो ये साउंड सुनाई देता क्या स्पेस में? नॉट, सॉरी, will sound be heard in space? स्पेस में ये आवाज सुनाई देता है क्या? नहीं, क्योंकि स्पेस में कुछ होता ही नहीं है. हवा नहीं होती, कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ नहीं होता, सॉलिड फॉर्म में कुछ नहीं होता, गैसेस फॉर्म में कुछ नहीं होता. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर द साउंड. ओके, क्योंकि साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए कुछ तो मीडियम होना जरूरी है, लाइक सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम और गैसेस मीडियम. You have learned it already in the propagation of sound in 6th standard. Okay, next point is transmission of sound. Okay, sound का transmission यानी how does the sound travel from one place to another place? All the sounds that we hear reach us through the surrounding air. ये सारे जो sounds होते हैं हम जहां पर बैठे हैं हमारी जगह तक कैसे आते हैं? We just say that we can hear with our ears, लेकिन हमारे कानों तक आवाज कैसे आता है? Only because of the air which is there present around us. The density of air also changes due to change in its temperature. ये हवा की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी यानी क्या कि how many molecules are present in the air. That is called density. जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितने कम मॉलिक्यूल्स उतनी कम डेंसिटी.
Okay, so the density of the air also changes due to change in temperature. जैसा टेम्परेचर चेंज होता है वैसी हवा की डेंसिटी चेंज होती है. ओके, विंटर सीजन में ज्यादा डेंसिटी होती है, समर सीजन में कम डेंसिटी होती है. ओके, अभी उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, देखते हैं हम लोग. ओके, दैट वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वन. इन विंटर द डेंसिटी ऑफ द एयर इंक्रीजेस. विंटर सीजन में डेंसिटी बढ़ती है. ओके, जैसे टेम्परेचर कम होता है उसकी वजह से हवा की डेंसिटी बढ़ती है. इट इंक्रीजेस. बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस, वी कैन हियर द विसल ऑफ अ डिस्टेंट ट्रेन क्लियरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर. उसकी वजह से दूर पर कहीं भी कुछ आवाज होती तो दैट वी कैन हियर इट वेरी क्लियरली. दैट आल्सो अर्ली इन द morning. Why? Because early in the morning the density of the air is maximum in the air. Air is useful as a medium for the transmission of sound. Okay, this is very important point. Okay, which you have to remember. Air is very useful as a medium for the transmission of sound. यानी हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग जो सुनते हैं, वो आवाज एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो कोई मदद करता है, दैट इज ईयर. ओके, एंड दैट ईयर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वी विल सी ड्यूरिंग द नेक्स्ट video.